Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss numericals based on cell constant, equivalent conductance and electrochemical series. So listen, first question is, this question is based on the calculation of cell constant. So listen, at 25 degrees Celsius, specific conductance of N by 50 KCl solution is 0.002765 ohm inverse centimeter inverse. If resistance of cell is 400 ohm, then calculate cell constant. It means in this question the given data is, what is given data? Listen. So the given data is normality of this solution, it is N by 50, and listen, specific conductance, that is kappa. Kappa is what? It is specific conductance. It is given 0.002765. Its unit is ohm inverse centimeter inverse. And resistance means capital R. It is given, resistance of cell, it is 400 ohm. Capital R is what? Capital R is resistance. Then you have to calculate cell constant. It means आपको क्या calculate करना है? Cell constant. So the question is very simple. We all know that cell constant is L by A, means length of electrode divided by cross sectional area of electrode. It is called as cell constant and you have to calculate it. Since we all know that specific conductance equal to, we all know that the formula of specific conductance, it is equal to kappa equal to C into L by A. We know that specific conductance kappa, this is the representation of kappa and it denotes specific conductance. Since we all know that conductance is inversely related with resistance, it means C equal to 1 by R. Conductance is the inverse of resistance. Now put C equal to 1 by R into this formula. Then this formula will become 1 upon R into L by A equal to kappa. Now you have to calculate the value of L by A. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? L by A की. It means now L by A. What is L by A? This is cell constant. यही क्या है हमारा? Cell constant. So cell constant L by A equal to, now we cross multiply it. It will be equal to kappa into R. What is the value of kappa? So we can say cell constant, it will be equal to, it is L by A and it will be equal to what? Kappa. What is the value of kappa? It is 0.002765 multiplied by capital R, means resistance. What is resistance? It is 400 ohm. Now the unit of kappa is ohm inverse centimeter inverse. It means ohm और ohm inverse क्या होगा? Cancelled out हो जाएगा. Now your cell constant will become, तो हमारा cell constant किसके बराबर हो जाएगा? Now cell constant means L by A equal to हमारा आ जाएगा, it will be equal to 1.106
What is its unit? Its unit will be centimeter inverse. Its unit will be centimeter inverse. This will be the value of cell constant. So it is very simple numerical which is based on the calculation of cell constant. So you can do it simply by using the formula of specific conductance. Now second question is calculate the equivalent conductance of one normal H2SO4 solution if specific conductance of this solution is given 26 into 10 to the power minus 2 ohm inverse centimeter inverse. So listen, we have to calculate the equivalent conductance. What is equivalent conductance? We all know that equivalent conductance, it is represented by capital lambda EQ. It is represented by capital lambda EQ and you have to calculate it. आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सॉल्यूशन की निकालनी है. किस सॉल्यूशन के लिए? वन नॉर्मल H2SO4. इट मींस नॉर्मेलिटी of this solution is also given. Normality, it is given one normal. Now specific conductance of this solution is also given. We all know that specific conductance is kappa. It is also given 26 into 10 to the power minus 2 ohm inverse centimeter inverse. Its unit is ohm inverse centimeter inverse. Now you have to calculate the equivalent conductance. We all know that the formula of equivalent conductance, it is capital lambda EQ equal to 1000 into kappa upon normality. This is the formula of equivalent conductance. So this question is based on equivalent conductance. So listen, now we will calculate equivalent conductance. Capital lambda EQ equal to 1000 into what is the value of kappa? It is 26 into 10 to the power minus 2 upon normality is given one normal. So listen, now we solve it. It will become 10 to the power minus 2 and 2 0 get cancelled out. It will become 260. And unit of equivalent conductance we have earlier discussed in this topic, ohm inverse centimeter square equivalent inverse. This is the unit of equivalent conductance, 260. So your final answer will be, or equivalent conductance of one normal H2SO4 solution will be 260 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. Now we will discuss second question, and it is calculate the equivalent conductance of one normal H2SO4 solution if specific conductance of this solution is 26 into 10 to the power minus 2 ohm inverse centimeter inverse. It means you have to calculate the value of equivalent conductance in this question for one normal H2SO4 solution. It means एक normal H2SO4 solution के लिए हमें इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है. Now we will solve this question. So listen, this question is based on the calculation of equivalent conductance.
So you have to calculate what is the given data. What is the given data? So given data is specific conductance is given. So what is specific conductance? So specific conductance, we all know that it is represented by kappa, and its value is given 26 into 10 to the power minus 2 ohm inverse centimeter inverse, and solution is given 1 normal. It means normality of this solution is also given. So what is normality? It is 1 normal. Which solution? There is H2SO4 solution. Now, then you have to calculate equivalent conductance. It means you have to calculate equivalent conductance. What is equivalent conductance? We all know that it is capital lambda EQ. It is represented by capital lambda EQ, and you have to calculate it. So listen, we all know that the formula of equivalent conductance, and it is capital lambda EQ, it is equal to 1000 into kappa upon normality. 1000 into kappa upon normality. Now putting all these values of kappa and normality, then it becomes 1000 into kappa. What is kappa? 26 into 10 to the power minus 2 divided by normality is given 1 normal. Then your equivalent conductance will become, it will be equal to, so 10 to the power minus 2 is cancelled by 2 0, and it will become 260, and its unit will be ohm inverse centimeter square equivalent inverse. So this will be the unit of equivalent conductance. So the unit of equivalent conductance is ohm inverse centimeter square equivalent inverse. So this is the value of equivalent conductance. Now next question is, arrange the following elements in the increasing order of their reducing power if standard reduction electrode potential means E0 REP of Ag, Hg, Cr, Mg and potassium are plus 0.80 plus 0.79 minus 0.74 minus 2.37 and minus 2.93 respectively. So listen, in this question we have to arrange the order of increasing order of reducing power. We all know that this is the electrochemical series ECS of the element. So listen, we all know that in electrochemical series the reactivity of the elements decreases on moving टॉप टू बॉटम. हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं. इट मींस विच वन विल बी मोस्ट रिएक्टिव? लिथियम विल बी मोस्ट रिएक्टिव. लिथियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है. इट मींस वी कैन से इट विल ऑक्सीडाइज, इट विल, lithium is metal, so it will lose electron first. It means हम कह सकते हैं अगर लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इट मींस लिथियम मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन को सबसे जल्दी लूज करेगा. इट मींस द ऑक्सीडेशन ऑफ लिथियम विल अकर इजीली. इट मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है. इट मींस लिथियम क्या होगा? सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा. लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, so it will lose
their electron easily and it will oxidize first. It means ऐसे सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज सबसे जल्दी होते हैं और तो वो सब्सटेंस दूसरे को रेड्यूस भी उतनी ही जल्दी करते हैं. इट मीन्स वी कैन से लिथियम एलाई ऑक्सीडाइज easily, so it will reduce other substance easily. It means हम कह सकते हैं लिथियम जो है वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए वो दूसरे को सबसे जल्दी रेड्यूस करेगा. इट मीन्स लिथियम किसकी तरह वर्क कर रहा है? इट एक्ट्स एज बेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट. इट मीन्स हम कह सकते हैं सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट कौन माना जाएगा? इट विल बी लिथियम. सो लिथियम विल बी बेस्ट और मोस्ट, वी कैन से स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट. Strong reducing agent. Reducing agent are also called as reductant. It means lithium क्या होगा? Strong reducing agent होगा. It means हम कह सकते हैं जो एलिमेंट सबसे ऊपर आता है वो सबसे अच्छा reducing agent होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी घटेगी ऊपर से नीचे आने पर, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी कम होती जाएगी, तो दूसरे को रेड्यूस करने की भी प्रोसेस कम होती जाएगी एलिमेंट्स की. इट मींस जो रेड्यूसिंग नेचर होगा वो भी ऊपर से नीचे आने पर घटता जाएगा. इट मींस वी कैन से ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम रेड्यूसिंग नेचर ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस. इट मींस जो रेड्यूसिंग नेचर होता है एलिमेंट्स का वो भी क्या करता है? डिक्रीज करता है. सो लिसन, इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है एलिमेंट्स को. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट इन 5 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है. इट मीन्स Ag, Hg, Cr, Mg एंड K. सो दिस इज K, दिस इज Mg, Hg, Cr, this is Hg, this is Cr, and one element is Ag, this is Ag. It means which one will be most or strong reducing agent. सबसे ज्यादा अच्छा reducing agent क्या है? सबसे ज्यादा अच्छा reducing agent होगा हमारा potassium. It means we can say decreasing order of reducing nature. It means सबसे ज्यादा अच्छा reducing नेचर किसका होगा? पोटेशियम का, क्योंकि रेड्यूसिंग नेचर हमारा ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में घटता जाता है या रेड्यूस होता है या डिक्रीज करता है. इट मींस सबसे ज्यादा किसका होगा? जो एलिमेंट सबसे ऊपर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. तो इन 5 एलिमेंट्स में सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम. इट मींस पोटेशियम का जो रेड्यूसिंग नेचर होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा. सो पोटेशियम एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट. उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? मैग्नीशियम. उसके बाद किसका रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा? क्रोमियम का. उसके बाद किसका रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा? मरकरी का. उसके बाद किसका रेड्यूसिंग नेचर होगा? सबसे कम किसका होगा? Ag का. इट मीन्स हम कह सकते हैं पोटेशियम it acts as strong reducing agent in
ऑल दीज 5 एलिमेंट्स, इन 5 एलिमेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होगा पोटेशियम, और हमारा Ag क्या होगा, ये हमारा वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होगा। इट मीन्स ये सबसे वीक रेड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा इन 5 एलिमेंट्स में Ag। सॉल्यूशन होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हमें जो E0 Rep की वैल्यू है, मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, वो हमारी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं जो E0 Rep की वैल्यूज हैं वो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो E0 Rep की वैल्यू है वो ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए क्या रहती है, नेगेटिव। मिडिल वालों के लिए क्या रहती है, मिडिल में जो हमारा हाइड्रोजन आता है उसके लिए क्या होती है, 0.0 वोल्ट। इट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है 0.0 वोल्ट, और बिलो एलिमेंट्स के लिए क्या होती है, इट इज पॉजिटिव। ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आप देख सकते हैं अगर हम जो दी गई वैल्यूज हैं उनके ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट्स को सेट करें तो हमें क्या पता चलता है सॉल्यूशन। Ag की वैल्यू है कितनी, 0.80। Ag की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 0.80। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। और उसके बाद Hg की वैल्यू है प्लस 0.79, इट इज प्लस 0.79। माइनस 0.74 है हमारी Cr की, Cr मीन्स दिस इज Cr माइनस 0.79। उसके बाद हमारा Mg है माइनस 0.74, इट इज माइनस 0.74। Mg की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.74। और उसके बाद हमारा पड़ेगा पोटेशियम और इसकी वैल्यू है माइनस 2.93। ये सारी ही वैल्यू वोल्ट में है। सॉल्यूशन यू कैन सी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स E0 Rep वैल्यू, इट इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप देख सकते हैं पोटेशियम के लिए माइनस 2.93 है जो कि सबसे कम है E0 Rep की वैल्यू, और फिर E0 Rep की वैल्यू धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा किसके लिए है, Ag के लिए। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद है तो हम एक पॉइंट ये याद रखेंगे, जो E0 Rep की वैल्यू होती है वो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होती है, बढ़ती जाती है। इट मींस हम सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिखेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आएगा, वो हमारा आएगा सबसे ऊपर पोटेशियम, क्योंकि इसकी E0 Rep की वैल्यू क्या है, सबसे कम है माइनस 2.93। इट मींस ये एलिमेंट सबसे ऊपर आएगा और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, उसके बाद एलिमेंट आएगा हमारा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के लिए जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एलिमेंट्स नहीं लड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा दिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उस डेटा को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे क्योंकि हमें पता है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव होता है, मिडिल वाले के लिए 0, मिडिल में हाइड्रोजन उसके लिए 0, और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट मींस हमारा जो E0 Rep होगा वो हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। इट मींस हम कह सकते हैं
कि हमारा जो ई नॉट आरईपी वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा निगेटिव होगी, और सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू है किसके लिए, ई नॉट आरईपी की पोटेशियम के लिए, दैट इज 2.93। और सबसे नीचे वाले एलिमेंट के लिए ई नॉट आरईपी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, दैट इज 0.80। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है इन 5 वैल्यूज में, इसलिए एजी क्या होगा, सबसे नीचे आएगा। इट मीन्स हम लोग ई नॉट आरईपी के बेसिस पर भी हम लोग एलिमेंट्स को बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा, कौन सा एलिमेंट नीचे आएगा। इट मीन्स हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि सबसे कम ई नॉट आरईपी की वैल्यू किसकी है, तो वो हो गई पोटेशियम की, ये कहाँ आएगा, सबसे ऊपर। उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी ई नॉट आरईपी में, -2.37, ये होगी Mg मैग्नीशियम की, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद मैग्नीशियम एलिमेंट आएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आएगा पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, क्योंकि पोटेशियम की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी -2.93, फिर मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, -2.37, फिर हमारी क्रोमियम की कितनी है, -0.79, फिर हमारा Hg की वैल्यू कितनी है, +0.74, और फिर हमारा Ag की वैल्यू कितनी है, +0.80। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी ई नॉट आरईपी की वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है, पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो सबसे कम जिसका ई नॉट आरईपी होगा वो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा, और सबसे ज्यादा जिसका ई नॉट आरईपी होगा वो एलिमेंट सबसे नीचे आएगा। इट मीन्स इसका आरईपी जो है, ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं वोल्ट में। किसकी वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो एलिमेंट, अब हमने क्या किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एलिमेंट्स को ऊपर से नीचे सेट कर लिया है। सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, फिर Hg और फिर Ag। तो हमने क्या देखा कि जो रेड्यूसिंग नेचर होता है एलिमेंट्स का, वो ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है। इट मीन्स सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग नेचर किसका होगा, जिसका ई नॉट आरईपी वैल्यू क्या है, सबसे कम है। इट मीन्स वो एलिमेंट क्या होगा, सबसे ऊपर आएगा, और सबसे ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और सबसे नीचे वाला एलिमेंट कौन है, Ag, क्योंकि इसका ई नॉट आरईपी वैल्यू क्या है, इसकी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये एलिमेंट Ag जो है सबसे नीचे आएगा, और ये वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग सिंपली इस साइन को रिवर्स कर देंगे। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reducing power will be, or reducing nature will be, reducing power means reducing nature, it will be, ये सबसे कम किसका होगा, हम कह सकते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे कम किसका होगा हमारा Ag का। इंक्रीजिंग मीन्स सबसे कम से सबसे ज्यादा, तो सबसे कम किसका है, Ag का। Ag के बाद कौन आएगा, Ag के बाद हमारा आएगा Hg, फिर कौन आएगा Cr, फिर कौन आएगा Mg, और फिर कौन आएगा पोटेशियम। इट मीन्स दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ दियर रेड्यूसिंग पावर। इट मीन्स ये क्या है, रेड्यूसिंग पावर या रेड्यूसिंग नेचर
का इंक्रीजिंग ऑर्डर इन 5 एलिमेंट्स के लिए। So listen, this will be the your final answer. So Ag हमारा क्या होगा, ये वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो हमारा पोटेशियम है ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होगा। थैंक यू।